السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد الواحد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پانچواں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 37 تا 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. يومئذ يود الذين كفروا وآسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں. اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اب اس کا تفسیر تسلسل سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو. مسئلہ: اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے. بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی. جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضائے الہی انہی مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ مشرکین و منافقین، یہ بھی انہی کے حکم میں ہے جن کا حکم اوپر گزر گیا. دنیا و آخرت میں دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوگا. اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا اس نبی کو، اور وہ اپنی امت کے ایمان و کفر و نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں کہ تم نبی الانبیاء ہو اور سارا عالم تمہاری امت. کیونکہ جب وہ اپنی خطا سے
मुकरेंगे और कसम खाकर कहेंगे कि हम मुशरिक न थे और हमने खता ना की थी, तो उनके मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी और उनके एज़ा व जवारे को गोयाई दी जाएगी। वो उनके खिलाफ शहादत देंगे। शान नज़ूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक जमात सहाबा की दावत की। उसमें खाने के बाद शराब पेश की गई। बाज़ों ने पी क्योंकि उस वक़्त तक शराब हराम ना हुई थी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इमाम नशे में कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू मा ताबुदून व अंतुम आबिदून मा आबुद पढ़ गए और दोनों जगह ला तरक कर दिया और नशे में खबर ना हुई और मानी फासिद हो गए। इस पर यह आयत नाजिल हुई और उन्हें नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया गया। तो मुसलमानों ने नमाज के औकात में शराब तर्क कर दी और इसके बाद शराब बिल्कुल हराम कर दी गई। मसला ऐसे साबित हुआ कि आदमी नशे की हालत में कलमा कुफ्र जुबान पर लाने से काफिर नहीं होता, इसलिए कि कुल या अय्युहल काफिरून में दोनों जगह लात का तर्क कुफ्र है। लेकिन इस हालत में हजूर ने इस पर कुफ्र का हुक्म न फरमाया, बल्कि कुरान पाक में उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब फरमाएगा। जबकि पानी ना पाओ तयम्मुम कर लो और पानी का इस्तेमाल ज़रर करता हो, ये किनाया है बेवुज़ू होने से, यानी जमा किया उसके इस्तेमाल पर कादिर ना होने, ख्वाह पानी मौजूद ना होने के बाइस या दूर होने के सबब या उसके हासिल करने का आला ना होने के सबब या सांप दरिंदा दुश्मन वगैरह कोई माने होने के सब बाइस। ये हुक्म मरीजों, मुसाफिरों, जनाबत और हदस वालों को शामिल है जो पानी ना पाएं या उसके इस्तेमाल से आजिज हों। मसला हैज व नफास से तारत के लिए भी पानी से आजिज होने की सूरत में तयम्मुम जायज़ है। जैसे कि हदीस शरीफ में आया है, तरीक़ा तयम्मुम, तयम्मुम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की नीयत करे। तयम्मुम में नीयत बाला जमा शर्त है, क्योंकि वो नस से साबित है। जो चीज़ मट्टी की जिन्स से हो, जैसे गर्द, रेता, पत्थर, इन सब पर तयम्मुम जायज़ है। ख्वाह पत्थर पर गुबार भी ना हो, लेकिन पाक होना उन चीज़ों का शर्त है। तयम्मुम में 2 ज़रबें हैं। एक मर्तबा हाथ मारकर चेहरे पर फेर लें, दूसरी मर्तबा हाथों पर। मसला पानी के साथ तहारत असल है और तयम्मुम पानी से आजिज होने की हालत में उसका पूरा पूरा कायम मकाम है। जिस तरह हदस पानी से ज़ाइल होता है, इसी तरह तयम्मुम से, हत्ता के एक तयम्मुम से बहुत से फ़राइज़ व नवाफिल पढ़े जा सकते हैं। मसला तयम्मुम करने वाले के पीछे गुस्ल और वुज़ू करने वाले की इक्तिदा सही है। शान नज़ूल ग़ज़वा बनी मुस्तलक में जब लश्कर इस्लाम शब को एक बियाबान में उतरा जहाँ पानी न था और सुबह वहाँ से कूच करने का इरादा था, वहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया। उसकी तलाश के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अकामत फरमाई। सुबह हुई तो पानी न था। अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाज़िल फरमाई। असीद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है, यानी तुम्हारी बरकत से मुसलमानों को बहुत सी आसानियाँ हुई और बहुत फ़वाइद पहुँचे। फिर ऊँट उठाया गया तो उसके नीचे हार मिला। हार गुम होने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बताने में बहुत हिकमतें हैं। हज़रत सदीक़ा के हार की वजह से क़याम उनकी फ़ज़ीलत और मंज़िलत का मशहर है। सहाबा का जस्तजू फ़रमाना उसमें हदायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की खिदमत मोमिनीन की सआदत है। और फिर हुक्म तयम्मुम होना मालूम होता है कि हज़ूर की अज़वाज की खिदमत का ऐसा सिला है जिससे क़यामत तक मुसलमान मुनतफ़े होते रहेंगे। सुबहान अल्लाह! वो ये कि तौरेत से उन्होंने सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को पहचाना और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसमें बयान था, इस हिस्से से वो महरूम रहे और आपकी नबूवत के मुनकिर हो गए। शान नज़ूल ये आयत रफ़ा बिन ज़ैद और मालिक बिन दाशम यहूदियों के हक़ में नाज़िल हुई, या ये दोनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते तो ज़ुबान टेढ़ी करके बोलते, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करके। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यहाँ आज तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ ताला इस कलाम मुक़द्दस के सदके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके तमाम परेशानियों परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मक़ाम अता फ़रमाए। और आपसे ये इस्तदा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुद देखें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अज़ीज़-अक़ारिब को, दोस्तों को जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचा सकते हैं, आप ज़रूर इसको पहुँचाएँ। क्योंकि ये एक सदका जारिया है और दिन क़यामत तक और इंशाअल्लाह दिन क़यामत वाले दिन, ये क़यामत की सुबह इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर इस सदका जारिया से आपको इसका सवाब पहुँचेगा और इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आख़िरत आपकी सँवरेगी इंशाअल्लाह। तो इस सदका जारी के अंदर आप अपना ज़रूर हिस्सा डालें। क्योंकि इसको जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, तो आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो उस सवाब की मद्देनज़र आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करने के लिए दोस्तों को इसकी तरफ मुतवज्जो करें और इस तरह के जितने भी चैनल चल रहे हैं, उनकी तरफ लोगों को उनकी तवज्जो मबज़ूल ज़रूर कराया करें, क्योंकि लोग अपना टाइम जो है वो फ़िज़ूलियात के अंदर ज़ाया करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो परेशान है, ख़ास तौर पे जो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हमें देखते हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए, उनके कारोबारों में खैर और बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको अपने इस मुक़द्दस कलाम के पैगाम को फैलाने के सदक़े आपको आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।